होशे की भविष्यवाणी पढ़ेंगे। होशे चैप्टर 3, 4, 5, 6। होशे 3, 4, 5, 6 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम तेरे वचनों को समझ सके और इस वचन के अधीन हम हो सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। The desolation of Israel foreshewn। होशे चैप्टर 3 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। चैप्टर 3 फर्स्ट वर्स। The desolation of Israel foreshewn, first verse से। Then said the Lord unto me, Go yet the Lord unto me, Go yet love. Then said the Lord unto me, Go yet love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods and love flagons of wine. So I bought her to me for 15 pieces of silver, and for an homer of barley, and an half homer of barley. And I said unto her, Thou shalt abide for me many days. Thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for another man. So will I also be for thee. For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an abhorred, and without teraphim. Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God, and David their king, and shall fear the Lord and his goodness in the later days. Chapter 4. God's judgment against the sins of the people and of the priests. First verse, Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. By swearing and lying and killing and stealing and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood. Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish with the beasts of the field, and with the fowls of heaven. Yea, the fishes of the sea also shall be taken away. Yet let no man strive nor reprove another, for thy people are as they that strive with the priest. Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night. And I will destroy thy mother. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. As they were increased, so they sinned against me. Therefore will I change their glory into shame. They eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity. And there shall be like people, like priests, and I will punish them for their ways, and reward them their doings. For they shall eat and not have enough, they shall commit whoredom and shall not increase, because they have left off to take heed to the Lord. Whoredom and wine and new wine take away the heart. My people ask counsel at their stocks, and their stuff declareth unto them, for the spirit of whoredoms hath caused them to err, and they have gone a whoring from under their God. They sacrifice upon the tops of the mountains, and burn incense upon the hills, under the oaks and poplars and elms, because the shadow thereof is good. Therefore your daughters shall commit whoredom, and your spouses shall commit adultery.
I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your spouses when they commit adultery. For themselves are separated with whores, and they sacrifice with harlots. Therefore the people that doeth not understand shall fall. Though thou Israel play the harlot, yet let not Judah offend, and come not yet unto Gilgal, neither go ye up to Bethaven, nor swear, the Lord liveth. For Israel slideth back as a backsliding heifer. Now the Lord will feed them as a lamb in a large place. Ephraim is joined to idols, let him alone. Their drink is sour, they have committed whoredom continually. Her rulers with shame do love give yea. The wind hath bound her up in her wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices. Chapter 5. God's judgment against Israel. Hear ye this, O priests, and hearken, ye house of Israel, and give ye ear, O house of the king. For judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor. And the revolters are profound to make laughter, though I have been a rebuker of them all. I know Ephraim and Israel is not hid from me. For now, O Ephraim, thou committest whoredom, and Israel is defiled. They will not frame their doings to turn unto their God, for the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the Lord. And the pride of Israel doeth testify to his face. Therefore shall Israel and Ephraim fall in their iniquity, Judah also shall fall with them. They shall go with their flocks and with their herds to seek the Lord, but they shall not find him. He hath withdrawn himself from them. They have dealt treacherously against the Lord, for they have begotten strange children. Now shall a month devour them. Month devour them with their portions. Blow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah. Cry aloud at Bethaven after thee, O Benjamin. Ephraim shall be desolate in the day of rebuke among the tribes of Israel. Have I made known that which shall surely be? The princes of Judah were like them that remove the bound. Therefore I will pour out my wrath upon them like water. Ephraim is oppressed, cause he willingly walked after the commandment. Therefore will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness. When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to King Jareb. Yet could he not heal you, nor cure you of your wound. For I will be unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of Judah. Even I, will tear and go away. I will take away, and none shall rescue him. I will go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face in their affliction. They will seek me early. Chapter 6. God exhorts Israel to repentance. First verse. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us in the third day.
He will raise us up, and we shall live in His sight. Then shall we know, if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? For your goodness is as a morning cloud, and as the early dew to goeth away. Therefore have I hewed them by the prophets, I have slain them by the words of my mouth, and thy judgments are as the light that goeth forth. For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. But they like men have transgressed the covenant, there have they dealt treacherously against me. Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood. And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent, for they commit lewdness. I have seen an horrible thing in the house of Israel. There is the whoredom of Ephraim. Israel is defiled. Also, O Judah, He hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people. होशे 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। होशे और विश्वासघाती स्त्री, पहले वचन से। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हकीम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसके उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। परमेश्वर का इस्राएल पर आरोप, 4 अध्याय पहले वचन से। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं, और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, और समुद्र की मछलियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर का याजकों पर आरोप, 4 वचन से आगे। देखो, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उलाह न दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तो दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जैसे वे बढ़ते गए, वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं, और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा, और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। हालेलुया। देखो, यहाँ पे उन्नति रुकने का कारण क्या है? वे खाएंगे तो सही,
ओके, मतलब उनके पास जो ब्लेसिंग दिखाई देती है उसके अंदर वह सब कुछ ठीक ठाक तो दिखेगा, परंतु उनकी उन्नति नहीं होगी। समझ में आया? उनकी उन्नति नहीं होगी, उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। उनके पास सब कुछ दिखाई तो देगा, मसीही के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन उनके अंदर उन्नति नहीं दिखाई देगी। सीक्रेट समझ जाना है कि उनके अंदर यहोवा के साथ सही ढंग से चलना नहीं है। ओके, वो चल नहीं रहे ठीक से, परमेश्वर के साथ, ईमान के साथ नहीं चल रहे हैं। ओके, स्वच्छ जीवन में नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर द्वारा मूर्ति पूजा की भर्त्सना, 11 वचन से आगे, वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतलों से प्रश्न करते हैं और उनको उनकी छड़ी उनकी भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? विश्वासी लोगों के बारे में कहा है ये, ठीक है। तो हमारा भ्रष्ट होना बुद्धि के अंदर से शुरू होता है। हमारे बुद्धि के अंदर का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है परमेश्वर के वचन का, हम उसको ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का बुद्धि किसको ले चुकी है? जो भ्रष्ट करने वाले इंस्ट्रक्शन से उसको ले चुकी है। ओके, जो वो ले चुके हैं, तो फिर उसके बाद हमारे कैरेक्टर फेल होना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर के अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई है। जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करे, तब मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि पुरुष आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वे नष्ट हो जाएंगे। हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को न आओ और न बेतावन को चढ़ जाओ और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न खाओ, क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर के समान हठ किया है। क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? देखिए, हमारा बड़ा कॉलिंग हम मिस कर देते हैं, ठीक है। बड़ा कॉलिंग, जैसा ANM मिनिस्ट्री के ऊपर परमेश्वर के बड़ा कॉलिंग है। ओके, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल मिनिस्ट्रीज के ऊपर देखते हैं हम, बड़ी कॉलिंग है उनके ऊपर। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के मिनिस्ट्री के ऊपर बड़ी कॉलिंग देखते हैं। परमेश्वर ने उनको बड़ा मैदान दिया है, लंबा चौड़ा मैदान में वो उनको चरा रहे। इतने सारे उनके पास रहस्य है, भेद है, परमेश्वर के सीक्रेट्स है, कि वो उतने शहर के अंदर, उतने देशों के अंदर घूम पा रहे, परमेश्वर का वचन फैला पा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने उनको वो चराई का मैदान दे दिया है। ओके, तो परमेश्वर कहता है, अगर तुम हठीले कलोर नहीं होते, कलोर के समान हट करने वाले नहीं होते, तो मैंने तुमको भी दिया होता। हालेलुया। और देखो उनको, उनके बारे में क्या लिखा है, उन्हें भेड़ के बच्चे के समान दिया है। समझ में आया? तो भेड़ के बच्चे के समान हमको परमेश्वर जब प्राप्त करेगा तो हमारी उन्नति होगी। हालेलुया। भेड़ के बच्चे के समान अगर हम नहीं अपने दिमाग तौर पर चलने वाले मिलेंगे, तो परमेश्वर हमारी उन्नति नहीं करेगा, बड़ी जिम्मेदारी हमारे हाथ नहीं सौंपेगा, और बड़े भेद भी वो हमको नहीं देगा जिससे दुनिया के अंदर परमेश्वर प्रकट किया जाएगा। इतने बड़े भेद वो हमारे अंदर कभी नहीं देगा। ओके, जैसा देखते हैं ना कि ANM मिनिस्ट्री में आप देखते हैं कि पूरे बल के साथ आत्मा का काम आप देखते हैं। वहाँ पर लाखों लाखों स्वर्गदूतों का वहाँ पर जमाव, लोग गवाही में बताते हैं कि हमने स्वर्गदूतों का यहाँ पर देखा, रेल चेल, इतना ज़्यादा भीड़ में परमेश्वर के स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। ये सब होना अगर आपको चाहिए तो आपके अंदर का कैरेक्टर परमेश्वर को भेड़ के समान लगना चाहिए। आपको लगना नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो मिलना चाहिए कि आप भेड़ के समान हैं, तो परमेश्वर आपको वैसे लंबे चौड़े मैदान में चराएगा। हालेलुया।
एप्रैम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। वे जब दाख मधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। 5 अध्याय पहले वचन से। हे याजकों, यह बात सुनो। हे इस्राएल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ और इस्राएल की दशा मुझसे छुपी नहीं है। हे एप्रैम, तूने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध होशी की चेतावनी। 4 वचन से आगे। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इसराइल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। इसराइल और यहूदा के बीच युद्ध। गीबा 8 वचन से आगे। गीबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंकी। बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना निश्चित है, मैंने उसी का संदेश इसराइल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हकीम उनके समान हुए हैं, जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उंडेलूंगा। एप्रैम पर अंधेर किया गया है, वह मुकद्दमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। पश्चाताप करने का दिखावा। 6 अध्याय पहले वचन से। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया।
उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इसराइल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें अप्रेम का छिनाला और इसराइल की अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा की बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने वचन के अंदर से हमको लाया, आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के पानी को हम पर तूने परमेश्वर उंडेला और हमारा जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर, हमारे सब कुछ शुद्ध पवित्र हुआ। विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं कि ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस और तेरा परमेश्वर पिता फिट एंड फिक्स करना हमारे जीवन को निश्चित तूने कर दिया है। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम 2 years बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। जॉन 19 चैप्टर 13 वर्स से 22 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 21 चैप्टर 22 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 13 वचन से 22 वचन और इतिहास की दूसरी पुस्तक 21 अध्याय से 22 अध्याय। हम पढ़ेंगे जब अकेले में बैठते हैं, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इसको पढ़ेंगे। और ज़रूरी नहीं आप सबने वैसे ही करना चाहिए। हमने ये निश्चय लिया है कि हम इकट्ठे जब अकेले में बैठकर पढ़ते हैं तो एक अलग सा प्रभाव परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन के अंदर से खोलता है और वो हम चाहते हैं प्राप्त करना। इसीलिए हम व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम में इसको पढ़ रहे हैं। आप अपने मर्जी से जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हैं और ये काम होने के लिए निश्चित है हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा और हमने परमेश्वर के आत्मा का निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं आपके वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।